चलिए आज का जो सेशन हमने जो आज स्टार्ट किया हुआ है ये एनसीसी कैडेट्स के लिए है। जो हमारे फर्स्ट ईयर में जो कैडेट्स आए हुए हैं लगभग 25 की स्ट्रेंथ है। उसमें हमने प्रेजेंटेशन का सेशन रखा हुआ है। प्रेजेंटेशन का सेशन रखने का मुख्य उद्देश्य ये है ताकि जो कैडेट्स हैं उसमें थोड़ा मोटिवेशन आए और जो बोलने की जो क्षमता है। आजकल क्या हो रहा है कि कोरोना टाइम चल रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन ही चल रही है। तो ऑनलाइन में जो कैडेट्स हैं उनको भी काफ़ी सारी एक्टिविटी ऑनलाइन करनी पड़ती है। तो ऑनलाइन में ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भी देना पड़ता है। तो ऐसे में वे कैडेट जो कैमरा फेस करने से झिझक रखते हैं या फिर बोल नहीं पाते हैं तो वो कैडेट कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आज का जो उद्देश्य है, उद्देश्य का कारण वही है कि ऐसे कैडेट अपनी झिझक दूर करें और खुल के सामने आए और एनसीसी के बारे में, मतलब कि जो जानते हैं उनको टॉपिक दिए गए हैं उस टॉपिक के बारे में बोलें। वो गलतियां होती हैं, सभी से होती हैं, लेकिन मोटिवेशन का उद्देश्य वही है आज के सेशन का कि वो अपनी गलतियों को आगे सुधारें, गलतियों से ही सीखें। तो आज का जो टॉपिक है कैडेट मोटिवेशन थ्रू ओरल प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन में हमारे जो 25 कैडेट्स हैं उसमें जो आज जो सेशन चल रहा है उसमें जो 5 कैडेट्स हैं वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे और प्रेजेंटेशन में एनसीसी के बारे में वो जो भी जानकारी उन्होंने इकट्ठी करी है उसके बारे में वो बताएंगे। तो आज का जो सेशन चलेगा, सबसे पहले मोहम्मद आमीन है वो बोलेंगे, उसके बाद धीरू बोलेंगे, फिर विजय कैडेट हैं वो बोलेंगे, फिर ब्रजेश, फिर सिवाय बोलेंगे। तो आज का सेशन हम चालू करते हैं। तो कैडेट मोहम्मद आमीन को मैं बोलूँगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन चालू करें। Good evening to you all. Respected Ashok Chaudhary sir, NCC in charge and fellow cadets sir. Let me introduce myself to you. My name is Muhammad Amin. I'm a NCC cadet of 4MP Battalion, Bhopal, and first year BSc Agriculture student of RIK College of Agriculture, Sihor. In this meeting, I'm with an oral presentation on the topic that is the various certificate program introduced by the NCC. The eligibility conditions and the general procedures of the conduct of the certificate examination for the cadets of senior and junior divisions of NCC that are issued by the headquarters of NCC in New Delhi. And under this, the NCC have three types of certificate examination. These are the Certificate A, Certificate B, and Certificate C. The Certificate A comes under the junior division, and the Certificate B and the Certificate C comes under the senior division or the wing of NCC. For the eligibility for the certificate A, the first one is the cadet must attend the second year of the NCC training program, and he also have to attend the annual training program of the conducted by the NCC. And the cadet must also having a 75 percentage of the attendance minimum attendance and of the program that is led by the NCC during their academic year on the first year. And also in the condition that a cadet break or leave the take a leave in the NCC, he can get a certificate A by two conditions. That is, if he took a leave of more than 12 months, then he had to attend a 45 period of a training program, and also his attendance during the its active period during the training period is recorded, and it has to be must be a 75 percentage minimum. And the cadet took a leave less than 12 year, then he can get that certificated by based on his attendances, that is minimum of 75 percentage attendance must be there. Okay, moving to the next certificate, that is the certificate B. The certificate B, in order to get a cadet a certificate B, he must attend the senior division NCC training program of the 2 years, and also he have to attend the annual training program or the NIC or the attachment program conducted by the Army, Navy, or the Air Forces. And also there is a 75 percentage of minimum attendance is required. And if a cadet having a certificate A,
then he would get a 10 bonus marker and 10 bonus marker, and also 75 percentage of minimum attendances is also required of the total training period. And if any cadet leave or break in the NCC program during this NCC program, in order to get the B certificate, i- there's two conditions. That is, if he took a leave of more than 18 months, then he have to undergo a 45 period of training, also his active attendance. And if the leave is less than 18 months, then then he can get the B certificate by his attendances during the activity. That is, he must have a minimum of 75 percentage. That cadet must have a 75 percentage of minimum attendance. And the cadets, those who are working in the air cadet, must have at least 10 glide launches in order to get this peace certificate. Then moving to the next certificate, that is the C certificate. In order to get a C certificate, the eligibilities are: the cadet must have a B certificate, that is necessary, and also he must be trained to 3 years of the senior division training program, मैसेज भेज दो कि and वीडियो कॉल ज्वाइन also 75 percentage of minimum बस क्या attendances करेंगे. during the third year of the academic session. And also he have to attend two camps that is conducted by the NCC. So these are the three certificates that is issued by the NCC for the cadets who are, during their academic sessions. And these certificates are of great values in various fields that you can go to the army and various other profession. This certificate will be very useful. And now, after the completing the academic sessions, that is the permission to appear for the certificate after the graduate, that is the graduate, that is you become an ex-cadet. In order to get a certificate, you have to send a request to the local unit commander, and this local unit commander is sent to the group commander, which is empowered to accept or reject this request and request, and he will decide whether you have to attend or it or not. And it has to be done at your own expense, and your own expense, and also it may take about 10 to 12 months of training in order to get the certificate. And we can also upgrade our grade or mark of in this certificate by applying for a retest, and so we get a good grade in the certificate. So this certificate issued by the NCC has a great value. So these are the overview on the various certificates issued by the NCC, and I hope you understand something, that is understand what I'm saying. And thank you for giving this opportunity. And glad I could join you all. Thank you and have a nice day. Jai Hind, sir. चलिए ये मोहम्मद आमीन थे. हमारे एनसीसी के फर्स्ट ईयर के कैडेट थे जिन्होंने बी सी सर्टिफिकेट के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी. मोहम्मद आमीन ने जो ए बी और सी के बारे में जानकारी दी उनमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब हम कॉलेज में आते हैं तो हम बी और सी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. तो फर्स्ट ईयर में जो कैडेट आते हैं तो एक नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, कॉलेज का एग्ज़ाम होता है, सिलेबस में जो शामिल होता है. उस एग्ज़ाम को पास करके फिर वो कैडेट एनसीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. Yes, sir. एनसीसी एनसीसी का जो क्राइटेरिया होता है उसमें फिर बटालियन से वहाँ से पीआई स्टाफ आएगा और फिर कैडेट का सिलेक्शन करते हैं. सिलेक्शन करने के बाद जब कैडेट सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद फिर उनको कैंप करना पड़ता है. तो जो भी कैंप करता है वो बी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाता है. तो जैसे ही वो कैंप करेंगे, एक कैंप करना पड़ता है, बी सर्टिफिकेट करेंगे, उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा. एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो फिर वो बी सर्टिफिकेट के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे और बी सर्टिफिकेट मिल जाएगा. जब उन्हें बी सर्टिफिकेट मिलेगा तो फिर वो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे.
क्लियर करने के बाद जब वो सी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, सी के लिए भी उनको एक कैंप करना पड़ेगा। तो कैंप जनरली मतलब कि जो भोपाल में रहता है किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में कर सकते हैं। फिर जैसे ही वो कैंप करेंगे फिर सी का एग्ज़ाम देंगे, सी का एग्ज़ाम देने के बाद फिर उनको सी का सर्टिफिकेट मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी मोहम्मद आमीन। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट कैडेट हैं वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। गुड इवनिंग सर गुड एंड इवनिंग। जय जय जी हिंद। जी सर। जय हिंद। जय हिंद। फर्स्टली जय हिंद टू आवर CTO अशोक सर एंड काजिम सर एंड ऑल द कैडेट्स। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं धीरज पाटिल खंडवा जिले के गुंजली ग्राम से हूँ। RK कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर 4 MP बटालियन भोपाल। अ, सबसे पहले तो मैं कुछ NCC की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। NCC यानी नेशनल कैडेट कोर्प्स, जो इसका सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट जर्मनी में 1666 में हुई थी। इसके जो फाउंडर थे पंडित HN कंजरू, और इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे गोपाल गुरुनाथ बेवूर। इसके जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह हैं। और इंडिया में यह फर्स्टली स्टार्ट हुई थी 16 अप्रैल 1948। NCC जब स्टार्ट हुआ था तो इसमें टोटल 20,000 छात्र सम्मिलित किए गए थे, जो कि आज लगभग 13 लाख के करीब हो चुके हैं। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो स्कूल और कॉलेज के अनुशासित और देशभक्त छात्रों को उनका भविष्य के नेतृत्व के लिए इसका निर्माण किया गया है। यह एक ट्रायंगुलर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इंक्लूड की गई है। इसका जो एम है वो कैरेक्टर, डिसिप्लिन, लीडरशिप एंड सेक्युलर हैबिट्स और सेंस ऑफ एडवेंचर्स को डेवलप करना होता है। कैमरा सब बंद है, आप जल्दी से वहाँ स्विच कर लो। ग्रेट आर्म फोर्सेस को एक करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया जाता है। जो NCC का हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। तो आज का मेरा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ NCC। तो मैं कुछ बेनिफिट्स बताऊंगा आपको। इनको हम कुछ भागों में बांट सकते हैं, जैसे नॉन डिफेंस, डिफेंस स्क्रीन चालू एंड कर दो, कोई दिक्कत इंटेंजिबल बेनिफिट्स। नॉन डिफेंस बेनिफिट्स में हमें NCC में कई सारी स्कॉलर्स भी मिलती है, मॉनेटरी इंटेंसिव्स प्राप्त होती है और रिजर्वेशन फॉर हायर एजुकेशन। हमें अच्छी उच्च शिक्षा के लिए कई सारी रिजर्वेशन प्राप्त हो जाती है। और डिफेंस बेनिफिट्स, तो NCC का निर्माण ही इसीलिए हुआ है ताकि यंग यूथ को डिफेंस फोर्सेस के बारे में बताया जा सके, उन्हें ज्वाइन करने का मौका मिले। अब बात करते हैं इंटेंजिबल बेनिफिट्स की। तो इंटेंजिबल बेनिफिट्स में केवल शिक्षा ही लीडरशिप नहीं सिखा सकता, हमें अपने जीवन में भी NCC से जुड़कर और कई सारे टारगेट्स को पूरा कर लीडरशिप को सीखना होता है। तो नॉन डिफेंस बेनिफिट्स में हम देखते हैं हमें कई सारे इंटेंसिव्स प्राप्त होते हैं, जो कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों द्वारा प्राप्त होते हैं। और कई सारी स्कॉलरशिप्स भी प्राप्त होती है। जो यूथ है उन्हें प्रोत्साहन मिले, इसलिए अब तो बेस्ट कैडेट अवार्ड्स भी मिलने लगे। इसके अलावा CWS यानी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1985 में, जो कि NCC से रिलेटेड है। कई सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग रिलायंस आर NCC कैडेट को सिक्योरिटी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस भी देती है। इंडियन आर्मी और अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए A, B और C सर्टिफिकेट प्राप्त होते हैं। A जो है 10th के पहले अगर इसे किया जाए तो इसे जूनियर सर्टिफिकेट के रूप में, और 10th से 12th के बीच में ले तो A सर्टिफिकेट सीनियर डिवीजन में आ जाता है। इसके लिए आपको अदर रिक्वायरमेंट्स और इंडियन आर्मी के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं,
बी सर्टिफिकेट के लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। एंड सी सर्टिफिकेट यह और भी ज़्यादा काम का है, जिसमें आपको सीईई एग्ज़ाम होती है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसके लिए आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो। इसके अलावा आपको पैरा मिलिट्री में 2 से 10 मार्क्स तक, और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन में भी कई सारी छूटें मिलती है। एनसीसी को बॉयज और गर्ल्स दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं। अ, इसके अलावा नॉन टेंजिबल बेनिफिट्स में आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज में भी डेवलपमेंट होता है। आप अच्छे लीडर बन सकते हैं। आप अपने यूथ को अ, समझा सकते हैं, कई सारी चीजें आप उस काबिल बन सकते हैं कि आप आत्मनिर्भर हो, आप पूरी तरह से समाज को प्रोत्साहित कर सके। और एनसीसी का उद्देश्य यही है कि हम सब काफी ज्यादा आत्मनिर्भर बने और हम सबको प्रोत्साहन दे सके। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का, सभी कैडेट्स का, और हमारे सीटीओ सर अशोक सर एंड काजिम सर, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद। नेक्स्ट किसका नंबर है वो प्रेजेंटेशन अपना करेंगे। जय हिंद सर, जय हिंद काजिम सर, जय हिंद ऑल कैडेट्स। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम विजय प्रजापति है। मैं राजगढ़ जिले के ग्राम पीपले रसोड़ा से रहने वाला हूँ। मैं एनसीसी के मोटो के, मेरा टॉपिक आज का एनसीसी का मोटो क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एनसीसी का मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। यूनिटी और डिसिप्लिन यानी एकता और अनुशासन। एकता का मीन्स होता है मतलब बाकी जो कैडेट्स होते हैं उनको जोड़े रखना, और अनुशासन का मतलब जो एनसीसी के जो नियम और जो व्यवस्था है उनके अनुसार कार्य करना। मैं एनसीसी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एनसीसी सबसे पहले स्टार्ट जर्मनी में 1666 में हुई थी, और हमारे यहाँ 16 अप्रैल 1948 को स्टार्ट हुई। इसके फर्स्ट जनरल गुरबिल पाल सिंह है। और एनसीसी के कुछ लक्ष्य हैं। एनसीसी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण करने में सहयोग करती है। एनसीसी अनुशासन के प्रति अनुशासन के अनुसार कार्य करना सिखाती है। जय हिंद, जय हिंद। मैं इसी के साथ अपने प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। Okay. Good evening, sir, and all the NCC cadets. Thank you, sir, for giving me a chance to introduce myself. My name is Brijesh Dangi from Beresia, Bhopal district. I am studying in RK College of Agriculture, Sior, and also NCC cadet of 4MP BNNCC, Bhopal. Today, I am here to share information on the topic of aims of NCC. The National Cadet Corps is the Indian military cadet corps with its headquarters at New Delhi. It is open to school and college students on voluntary basis. NCC is a tri-services organization comprising the Army, Navy and Air Force. The aims of NCC is to develop discipline, character, brotherhood, the spirit of adventure and ideals of selfless service among young citizens. Not only these, it also aims to enlighten leadership qualities among the youth who will serve the nation regardless of which career they choose. An NCC candidate start serving people in different ways. Neemaj, Superintendent of Police, has requested for service of 245 cadets in supply chain and traffic management. 64 senior division cadets, including 7 women, have already been employed there. Collector of Bilaspur has requested for service of NCC volunteer for training in COVID-19 preventive measures. These cadets are being imparted training for the job ahead. In HP, Kangra district administration have asked for service of 86 cadets.
till 14th of this month to assist police in ensuring social distancing in the city. 75 cadets are providing services in Tamil Nadu and 57 in Pondicherry. Some cadets are being employed in Balrampur in UP. 80 cadets in East Kasil Hills district are assisting the Meghalaya police in monitoring of ration distribution and censorship. Here correspondent reports that the cadets are looking after tasks related to manning of help, line of call center, distribution of relief materials, medicines, food and essential commodities, community assistant, data management and traffic management, and manning of CCTV control rooms. Thank you. This much from my side, Jain sir. ये खाकी यूनिफॉर्म होती है और नेवी कैडेट मैंने बताया था कि जूनियर के लिए तो 3 ईयर का 2 ईयर का होता है और सीनियर के लिए 3 ईयर का होता है और इसमें यूनिफॉर्म होती के लिए यूनिफॉर्म होती के लिए वाइट यूनिफॉर्म और एयरफोर्स के लिए ब्लू यूनिफॉर्म होती है। जो जूनियर डिवीजन होते हैं कैडेट उन्हें एनसीसी में सर्टिफिकेट दिया जाता है और जो सीनियर डिवीजन में होता है उन्हें बीआर सर्टिफिकेट दिया जाता है। और एनसीसी में कैंप होते हैं, लीडरशिप कैंप होते हैं, सैनिक होते हैं, इनका 17 निदेशक फुल के द्वारा जो मतलब ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी होता है जो कि कानपुर महाराष्ट्र नीचे की बिंदु को ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। लगभग हेलो। 5 कैडेट्स ने अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लिया है आज। यस सर। तो काजिम कैसा था आज का प्रेजेंटेशन सभी का? आप अपने कमेंट दें थोड़ा। यस सर, बहुत अच्छा था सर, जो सोचा था मतलब उससे बहुत बेटर किया उन्होंने सबने। लगभग सभी जो इन्फॉर्मेशन उनकी जो सेकंड ईयर तक इन्फॉर्मेशन होती है वो उन्होंने दे दी, थर्ड ईयर तक जो कैडेट को होना चाहिए बहुत बेटर है। मतलब ऐसे ही जब 5 को हुआ है तो सभी को लगभग इन्फॉर्मेशन ये होने चाहिए। और एक जो था इंट्रोड्यूस करने का, जैसे जो हम इंट्रोडक्शन देते हैं उसमें एनसीसी में कभी जिले का नाम इसमें नहीं बताना, नाम बताना। जैसे मेरा नाम है काजिम महमूद, 4 MP बटालियन एनसीसी भोपाल, इतना बोलना है। और रेजिमेंटल नंबर मिल जाएगा वो आगे बोलना है, तब जिले का नाम ना बताकर अपना सीधा बटालियन बताना है। बस इतना है थोड़ा, और बाकी आगे और ऑफलाइन क्लास जब होगी परेड वगैरह ये सब कंप्लीट हो जाएगा। बस आज का प्रेजेंटेशन था, ठीक है। काफी अच्छी Yes, sir. मेहनत बहुत करी अच्छा हुई था है सर। और बहुत ही शॉर्ट टाइम में इन्हें तैयार किया है। जैसे यस सर, 25 स्पेशल मार्क्स सर बनते हैं इनके लिए। ओके 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 25 कैडेट्स हैं, तो आज Yes, का 5 का प्रेजेंटेशन करवा दिया। नेटवर्क इशू था बीच बीच में। जो Yes, मेरा sir. मतलब कि जो आज का जो टारगेट था ये था। यस सर। सर खत्म करें सर अब? यूट्यूब स्ट्रीमिंग से ज्वाइन करें और फिर मतलब कि सारे उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम था, नेटवर्क वगैरह का प्रॉब्लम आया। तो यस सर, काफी प्रॉब्लम था। टाइमिंग थोड़ी गलत थी। तो कल भी प्रेजेंटेशन अपने को रखना है, बाकी जो रिमेनिंग रह गए हैं तो यस सर, उनके लिए उसका शायद मॉर्निंग में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। हाँ, तो काजिम ऐसा करते हैं, काजिम ऐसा करते हैं कि जो अपन रखेंगे 9 o'clock का सही रहेगा क्या? 9 या 10 o'clock? हाँ सर, एक बार कैडेट्स और पूछ लेना सर आप, तो बाकी सही रहेगा। तो अभी मैं मॉर्निंग मैसेज सही कर रहता है दूंगा। सर। हाँ सर।
आज का थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। हाँ सर, फिर भी बेटर क्या है सर, बहुत कि बेटर है जो जो भी इन्होंने किया है नहीं, इनका बहुत बेटर था। सर, थोड़ा जो बेस्ट था सर। कम्युनिकेशन जो था कि यस सर। अपने को मतलब कि जो प्रेजेंटेशन इसमें करवाना है और जो बाकी जो कैडेट जो ज्वाइन करेंगे यस सर। वो यूट्यूब स्ट्रीमिंग में करेंगे। ठीक है, हाँ दोनों सर। दोनों लिंक मैंने भेज दी थी। यस सर। क्योंकि नेटवर्क का इशू आया था तो हाँ यूट्यूब सर, थोड़ा चालू हुआ नेटवर्क तो का फिर सर बीच में देखकर बंद वाईफाई हुआ। वगैरह किसी चीज से नेटवर्क थोड़ा हार्ड होना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं मॉर्निंग सेशन में अच्छा रहेगा। अभी थोड़ा सा यस एडिटिंग में सर। मतलब कि अच्छा नहीं था। यस सर। कल होप करते हैं कल अच्छा रहेगा। यस सर। ठीक है, तो बाकी और कैडेट कुछ बोलना चाहते हैं जिन्होंने अभी presentation दिया? मोहम्मद अमीन। Hello, sir. Jai Hind, sir. जय हिंद। जय हिंद। Sir, network, some problems happen. ओके ओके, Otherwise, no problem. Everyone is doing well, sir. ओके, वेरी गुड। पूरे को डायरी जो असाइनमेंट के लिए बोली गई है ना सर, वो बिल्कुल सही बनाना Sir, है, क्योंकि assignment and sorry, sir. असाइनमेंट में डायरी बनाना है, असाइनमेंट मतलब असाइनमेंट जो है उसका एक नोटबुक बन जाएगी तो वो अच्छा रहेगा, 3 साल काम आएगी वो, ऐसा। ओके। तो जो कॉन्सेप्ट था यस सर। कि ये जो टॉपिक जो इनको दे रहे हैं यस तो सर। वो एक डायरी में नोट करेंगे तो वो असाइनमेंट बन जाएगा यस सर। और वही ये प्रेजेंट करेंगे तो वही, प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा। तो बिल्कुल सर। इनका जो अपन ने आज देखा कि कितना अच्छा प्रेजेंट किया इन लोगों ने, बहुत अच्छा किया। तो ये थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा इनका प्रेजेंट करने की क्वालिटी। इसका यूज यस हम सर। आगे कर सकते हैं कैंप वगैरह में। यस सर। तो दोनों काम हो जाएंगे, असाइनमेंट भी हो जाएगा, इनका डायरी भी बन जाएगी। बिल्कुल साथ सर। में इनको जो नंबर देने हैं नंबर भी दे दूंगा मैं इसके थ्रू। नंबर अच्छे मिल रहे हैं, बताओ। एक जो स्पीकिंग की जो क्वालिटी है वो भी सुधर जाएगी इनकी। बिल्कुल सर। तो होप करते हैं कल थोड़ा और अच्छा यस जाएगा। सर। बाकी चलिए तो आज की मीटिंग लीव करते हैं यहीं पे। ओके सर, थैंक यू सर। जय हिंद, जय थैंक यू भारत। सर। Thank you, sir. जय Thank हिंद। you. जय हिंद थैंक यू सर। ऑल। जय हिंद।